Okay, so let's just quickly start with electromagnetic induction now. Okay. Okay, beta. So let's say हमारे पास we have a coil. Okay, so we have a coil of wire, and this coil of wire is connected to a galvanometer. What is the purpose of this galvanometer? Galvanometer ये डिटेक्ट करता है कि if there is a current in the coil, तो आपके जो galvanometer की नीडल है वो डिफ्लेक्ट करती है. ठीक है? So if current is present in the coil, galvanometer deflects. Okay? So let's say अगर coil में current induce होगा तो आपकी जो galvanometer की needle है it will either move to the right or it will move to the left. Now let's say we have a bar magnet. This is the north and this is the south. Now we know कि जो magnetic field lines हैं they are always traveling from north to south. Okay, so this is a bar magnet. Now let's say we move the magnet inside the coil. So move magnet inside the coil. अच्छा, अब इससे बेटा there are certain keywords that you all need to remember. कि when you will move the magnet inside the coil, तो उससे ये होगा, ये coil किस चीज का बना हुआ है? Coil is made from copper. Okay, copper is basically a conductor. Now, what is the difference between a conductor and an insulator? जो conductor होता है, conductor has free moving electrons. So this conductor has free moving electrons. Okay, so basically it has a lot of free moving electrons. Acha, now what will happen? Again, इस chapter में भी बेटा there are certain keywords that you need to remember. The moment you move the magnet inside the coil, तो जो magnetic field lines है, the magnetic field lines will cut the coil, or because of the cut of magnetic field lines, change in magnetic flux is produced, और उसकी वजह से EMF and current will be induced in the coil. Okay? So we move magnet inside the coil. उससे क्या होगा? Magnetic field lines cut the coil and changing magnetic flux is produced. ये keywords हैं. Magnetic flux is produced. मैं अभी explain करूंगा कि magnetic flux क्या है और EMF हम किस चीज को कह रहे हैं. So magnetic field lines they cut the coil and changing magnetic flux is produced. उससे क्या होगा? Hence EMF and current is induced. बेटा induced का word लिखना है, आपने produced नहीं लिखना. Okay? Hence EMF and current is induced in the coil.
ओके, अब बेसिकली व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? ठीक है, सो पहली चीज है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? सो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें ये बताता है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस cutting the coil per unit time. So number of magnetic field lines cutting the coil per unit time. Okay, coil per unit time is called as the magnetic flux. Now EMF क्या होता है बेटा? EMF वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि दे आर एक्चुअली द सेम थिंग. नाउ ईएमएफ की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन मूविंग फोर्स. सो व्हाट इज ईएमएफ? इलेक्ट्रॉन. Okay, so what is EMF? EMF is an electron moving force, or we also call it an electromotive force. ठीक है, मोटिव का मतलब मोशन का होता है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग. अब देखो बेटा, when these magnetic field lines, when they cut the coil or when they interact with the coil, तो जो electrons होते हैं, these electrons will absorb the magnetic force or the magnetic energy. When they will absorb the energy, तो वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज की डेफिनेशन है एनर्जी पर यूनिट चार्ज. तो जब चार्जेस के पास एनर्जी होगी तो इट मींस के ईएमएफ वहां पे प्रेजेंट है. ओके, सो आई रिपीट. देखो, व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज द इलेक्ट्रॉन मूविंग फोर्स. तो अब हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर gain energy or force due to magnetic field lines. Due to magnetic field lines. और जनरली हमारे पास ईएमएफ की वैसे डेफिनेशंस क्या है कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज across the whole circuit. Okay, yes. Okay, so energy per unit charge across whole circuit. So this is actually the basic definition for electromotive force. Now what is EMF? EMF is basically कि जब ये magnet, when you're going to insert it inside the coil, so these magnetic field lines, they cut the coil and the electrons will absorb the energy, and when these electrons will have energy, इसका मतलब ये है कि EMF is induced in the coil. Okay, now इससे हमारे पास करंट इंड्यूस होता है. नाउ व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट? देखो, करंट की डेफिनेशन होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम या चार्ज पर यूनिट टाइम. ओके, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स, once they have sufficient energy, so they will start moving inside the coil. तो जब ये मूव कर रहे होंगे, so flow of electrons per unit time causes the current to be induced in the coil. Okay, so flow of electrons per unit time. अच्छा, now what is the basic meaning of electromagnetic induction? देखो, electro comes from electricity, magnetic is from magnetism. ठीक है, और इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन होता है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट. इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कॉन्टैक्ट. अब आप देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं
apparently we cannot see them with our eyes. और आप मैग्नेट को कॉइल में इंसर्ट कर रहे हो, मैग्नेट और कॉइल आपस में टच नहीं कर रहे, ठीक है? तो अब हो क्या रहा है कि through the magnetism you're inducing the current inside the coil without any contact. So अगर मैं definition पूछता हूं आपसे कि what is the basic definition of electromagnetic induction, so what we are going to write, we will write, ठीक है? So you can basically give this information as well, that when you move the magnet inside the coil, magnetic field lines, they cut the coil, ठीक है, and a changing magnetic flux is produced, hence EMF and current is induced in the coil, ठीक है? So due to cut off magnetic field lines, changing magnetic flux is produced, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ एंड करंट is induced in coil without contact between magnet and coil. So this is what the electromagnetic induction is all about. Okay, now let's just talk about what is Faraday's law. Faraday's law की definition है, 2 मार्क की एग्जाम में आपको Faraday's law की definition वो पूछेगा. So the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. So what is Faraday's law? Faraday's law कहते हैं कि the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, to the rate of change of magnetic flux. ठीक है? अच्छा, let's just talk about the Faraday's law. ये 2 मार्क की definition. 1 मार्क के induced EMF is directly proportional to a rate of change of magnetic flux का 2 मार्क है. ठीक है? इसी तरह अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की 2 मार्क की डेफिनेशन है, so due to cut off changing magnetic flux is produced, EMF and current is induced in the coil, यहाँ तक एक, और without any contact between them. So this is how we are going to, मतलब ये वैसे आएगा भी तो ये 3 का अगर आएगा, ठीक है? Changing magnetic flux का 1 मार्क, EMF and current is induced in the coil का 1 मार्क, और without a contact का there is going to be another mark for that. अच्छा, what is Faraday's law? देखो, हमारे पास ये जब मैग्नेट को when you insert, तो magnetic field lines coil को कट कर रही है, changing magnetic flux is produced, because of that EMF and current is induced in the coil. Now please बेटा, जितनी ज्यादा field lines कट करेंगी उतना ज्यादा changing magnetic flux होगा, और उतना ही ज्यादा current and EMF is induced in the coil. Okay? So ये चीज है. अच्छा, अब what are the factors through which we can increase the magnitude of induced EMF in the coil? So factors to increase magnitude of induced EMF. Now, what are the factors to increase the magnitude of induced EMF? First one is
कि वी कैन यूज स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स। देखो बेटा, जितने मैग्नेट स्ट्रॉन्गर होंगे उससे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उतनी ज्यादा होंगी, तो उतना ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और उतना ही ज्यादा ईएमएफ। यूज स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स, ठीक है। और वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा कट करेंगी फील्ड लाइंस, तो उतना ही ज्यादा फ्लक्स और इंक्रीज, या मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। और थर्ड है कि मूव मैग्नेट फास्टर। जितना आप मैग्नेट को तेजी से इंसर्ट करोगे तो उतना ही ज्यादा फील्ड लाइंस कट होंगी, ठीक है। इनसे क्या हो रहा है, इन तीनों चीजों को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट द कॉइल, hence more magnetic flux is reduced, hence more EMF and current is induced। अब वो एक ही बात है जो बार बार रिपीट होती जाएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द Faraday's law is। ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द Lenz's law। Okay, what is Lenz's law? Lenz's law आपको ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, now what is Lenz's law? The direction of induced current in the coil is such that it opposes the cause producing it, is such that it opposes the cause producing it। सो ये 2 मार्क की इसकी भी डेफिनेशन एग्जाम में आती है। सो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, इसका 1 मार्क है। अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट का दूसरा मार्क है। ओके, सो दिस इज व्हाट द लेंज़'s लॉ इज। नाउ इसको अब हम देखते हैं। सो लेट्स से बेटा, लेट मी ड्रॉ अनदर। इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज बेसिकली Lenz's law is। So we have a galvanometer. Okay, now this is a galvanometer and this is a bar magnet। So this is north and this is the south pole, ठीक है। We are moving the magnet inside। अब देखो बेटा, लेंजेस लॉ ये कह रहा है कि जो आपके पास कॉइल में करंट इंड्यूस होगा तो इट हैज टू अपोज दिस मैग्नेटिक पार्ट। अब वो क्या होगा बेटा कि अगर इसका नॉर्थ पोल इधर फेस कर रहा है तो वी विल हैव अ नॉर्थ पोल ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल ऑन द लेफ्ट, और यहाँ पे साउथ। व्हाई डू वी हैव अ नॉर्थ पोल? बिकॉज द लाइक पोल्स रिपेल, ठीक है। लेंजेस लॉ ये कहता है कि जो कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, देखो हमने जब सोलेनॉइड पढ़ा था, हमने सोलेनॉइड में ये देखा था कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के अराउंड हमने कॉइल को रैप अप किया था, ठीक है। और इसमें से करंट हमने पास किया था लाइक दिस।
तो जब आप कॉइल में से करंट को पास करते थे तो उससे ये होता था कि मैग्नेटिक पोल्स वर इंड्यूस्ड एट द एजेस ऑफ द कॉइल, जिसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते थे, यूजिंग द राइट हैंड ग्रिप रूल। और उससे हमें ये पता लगता था कि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ पोल है। सो वी यूज टू यूज राइट हैंड ग्रिप रूल ना। और राइट हैंड ग्रिप रूल से हमें ये पता लग जाता था कि लेफ्ट पे कौन सा मैग्नेटिक पोल है और राइट पे कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है। अच्छा, अब बेटा जब करंट की डायरेक्शन इस तरह डाउनवर्ड्स है फ्रंट से, तो आपके पास राइट साइड पे नॉर्थ है और इधर साउथ है। और अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं तो आपके पास क्या होगा कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, अब द पॉइंट इज कमिंग बैक टू दिस, ये कॉइल है, जब इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा तो बिकॉज ऑफ दैट what will happen, magnetic poles will be induced at the edges of the coil. Okay, so I'll write this down as well. Okay, let's say due to induced current in the coil, magnetic poles are induced at both ends of the coil, both ends of the coil, such that they oppose magnetic poles of magnet. ओके, सो अब यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होगा और यहाँ क्यों, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं बिकॉज ऑफ दैट। सो वी हैव अ नॉट नाउ यूजिंग द राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है, वी विल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस कॉइल। ठीक है, यूज राइट हैंड grip rule to determine direction of induced current in the coil. Okay, सो अगर मैं राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करूंगा तो बेटा इसमें कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है। ठीक है, और अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो जो गैल्वानोमीटर की नीडल है इट विल डिफ्लेक्ट टू द राइट। ओके, अच्छा नाउ लेट्स से, अब आपने, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ओके नाउ लेट्स जस्ट, अब व्हाट इफ ये कॉइल एज इट इज अपनी जगह पे है। Okay, so this is the, and this is again the galvanometer. Now the magnet is inside. The same magnet, जब आपने इसको insert किया, तो now the magnet is inside. We have the south pole of the magnet at this. अच्छा, अब आपने, when the magnet is inserted और अब आप इसकी direction reverse करते हो। पहले you were inserting the magnet inside. ठीक है, we insert magnet, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम मैग्नेट को बाहर रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेट मूव्स आउट। तो जब ये इस डायरेक्शन में है तो आपके पास जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। अगर पहले इधर, अब देखो लाइक पोल्स रिपेल, अब क्योंकि जब ये लेफ्ट पे इसका साउथ पोल इसको फेस कर रहा है तो वी विल हैव अ साउथ पोल एट दिस एंड एंड अ नॉर्थ पोल एट द अदर, व्हिच मींस कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट
in the coil will also reverse. Okay, so this is going to be the direction, and so will the galvanometer deflect in the opposite direction. Okay, so this is why we say that alternating current is induced. This is not a DC current because DC current का जो magnitude होता है वो fixed है, but जो alternating current है उसका जो magnitude और उसकी जो direction है it is constantly changing. So let's say if when you insert the magnet inside the coil and the current induced in the coil is in the anti-clockwise direction, but the moment you will remove the magnet out, so usse the direction of the induced current in the coil will be in the clockwise direction. I hope it's clear to everyone. If anybody has any questions, beta, please feel free to ask. And you can also send me a message on the WhatsApp, so I'll respond back to you in the class. Okay, I hope it's clear. Acha, now, beta, let's just talk about the next thing, and that is, so we are going to talk about, now we are going to place a conductor inside the magnetic field and we are going to move the conductor, ठीक है, inside the magnetic field, ठीक है, place conductor inside magnetic field and exert, या इसको हम कर देते हैं move conductor inside a magnetic field. Okay, अच्छा, so let's, अच्छा एक और चीज ये है बेटा, it's not necessary कि every time we have to move the magnet inside the coil. Let's say instead of magnet, if I move the coil to the left, so still due to the movement, magnetic field lines will be cut, change in magnetic flux will be produced, and EMF and current is also induced in the coil. Okay? Acha, now when we are going to move a conductor, so let's say so ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है. So we have a north pole at this end and a south pole at this end. Now let's say I have placed a conductor. So this is a conductor wire that is placed between these magnetic poles. And I'm going to attach a galvanometer with them. Okay. Now, beta, this conductor is moved upwards with a force. अब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी एक बात की थी, बल्कि at the beginning of the lesson I just said one thing कि this is the force, ठीक है? So move conductor upwards. Acha, now what will happen when you move the conductor in the upwards? Now you can see that magnetic field lines जो है, they are constantly traveling from north towards the south pole. So ये जो green dotted lines है, they are basically giving us the direction of the magnetic field. So we can say that the magnetic field is acting to the right. So this is your magnetic field. अच्छा, अब मैंने आप लोगों को स्टार्ट में एक चीज बताई थी, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट. इन तीनों में से
कोई दो चीजें अगर अवेलेबल हैं, so the third one is automatically produced. So we can say that force is present, magnetic field is present, so the current will be induced in the coil. Okay? Acha. Now, how can we determine the direct? Acha, और होता क्यों है? The reason is that when you move the conductor upwards, so the conductor will cut the magnetic field lines. उससे change in magnetic flux is produced, hence EMF and current is induced. So मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि these are the keywords for the whole chapter. अगर आपको ये points याद है तो ये सबकी working में यही है. So अच्छा, कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड. उससे क्या होगा? हेंस ईएमएफ एंड करंट इज इंड्यूस्ड. हेंस ईएमएफ एंड करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल. अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बात की है कि वी विल यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल. ओके, सो यूज फ्लेमिंग्स right hand rule. Fleming's right hand rule to find direction of induced current in the coil. अब मैं आप लोगों को ना डिफरेंस लिखवाऊंगा कि कब आपने लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है और कब आपने राइट हैंड रूल यूज करना है टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in the coil. Okay, so if we use the Fleming's right hand rule, thumb gives you the direction of the force, index finger gives the direction of the magnetic field, and the second finger gives the direction of the induced current. So the current that is induced in the coil is in this direction. ये current की direction होगी. And the current flows and ये galvanometer will deflect indicating कि जो current है that has been induced in the coil. Okay, I hope it's clear to everyone. Now next let's just talk about when to use Fleming's left hand rule and when do we use Fleming's right hand rule. Okay, first important thing when there's a DC motor, so we will always use Fleming's left hand rule. When there is an AC generator, we will use Fleming's right hand rule. The second important thing is कि अगर तो आपके पास फोर्स प्रोड्यूस हो रही है कॉइल में, ठीक है, फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ऑन कॉइल, तो अगर फोर्स प्रोड्यूस हो रही है तो आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे. और लेट्स से अगर आप फोर्स खुद से दे रहे हो, ठीक है, फोर्स प्रोवाइडेड, ठीक है, और कॉइल और कंडक्टर मूव्ड, कॉइल या कंडक्टर मूव्ड बाय पर्सन, ठीक है. तो लेट्स से डीसी मोटर में यही होता था ना कि हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड देते थे और फोर्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होती थी. राइट हैंड रूल में ये है कि अब आप करंट और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स दे रहे हो और करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है.
तो थर्ड चीज ये है कि अगर आप करंट इज प्रोवाइडेड, ठीक है, सो अगर आप करंट खुद से दे रहे हो तो वो डीसी मोटर है, उधर आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे। और अगर करंट जो है वो इंड्यूस हो रहा है, करंट इज इंड्यूस्ड, सो करंट अगर इंड्यूस हो रहा है तो देन वी विल यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यस, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द एसी जनरेटर एज वेल, कि हाउ डज एन एसी जनरेटर वर्क्स और उसकी जो डायग्राम है वो कैसी है। ओके, आई अभी लिख तो नहीं कोई रहा था, मैं थोड़ा ऊपर ही कर देता हूँ। ओके, सो let's just talk about the AC generator quickly. Okay, so बेटा अब देखो, डीसी मोटर में हम लोग रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, वी वर प्रोड्यूसिंग द फोर्स। एसी जनरेटर में हम ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करते हैं, ठीक है। So we are generating the alternating current in an AC generator. So first of all, we should know about the diagram of an AC generator. So आपके पास मैग्नेटिक पोल्स हैं, so this is the north and this is the south. Okay. Now we place a rectangular coil between. Okay. अच्छा, डीसी मोटर में हमारे पास स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स होते थे, मगर एसी जनरेटर में वी हैव स्लिप रिंग कम्यूटेटर्स, ठीक है। अच्छा, एंड यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास कोई करंट का सोर्स नहीं है। डीसी मोटर में हम बैटरी लगाते थे सर्किट में ताकि हम उससे करंट प्रोड्यूस कर सके, करंट दे सके कॉइल को। इसमें हमने करंट को इंड्यूस करना है, ठीक है। ये आपके पास एक्सेस है, these are the slip ring commutators। स्लिप रिंग कम्यूटेटर का आपसे फंक्शन पूछेगा एग्जाम में कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्लिप रिंग कम्यूटेटर। तो ये क्या करता है, इट provides path to induced current to flow to the output circuit. This is your output circuit, ठीक है। It provides path to induced current to flow to output circuit, ठीक है। सो आपके पास स्लिप रिंग कम्यूटेटर का पर्पस ये होता है कि ये आपके पास जो इंड्यूस्ड करंट है कॉइल में उसको आउटपुट सर्किट से कनेक्ट कर देता है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्बन ब्रशेस, it prevents the wire from getting tangled and it also reduces the friction between slip ring commutators and the coil, okay। So yes, carbon brushes का same purpose है, to prevent wires from getting tangled, okay। So this is the purpose of a carbon brush। अच्छा, अब आप coil को खुद rotate कर रहे हो इसमें। Now where do we use an AC generator? जो आपके पास wind turbines होती हैं, जो उसमें fans लगे होते हैं,
सो आप नेचुरल एयर का यूज करते हो जो आपके उसके फैंस को रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ दोस फैंस आर कनेक्टेड टू दिस रेक्टेंगुलर कोयल, ताकि ये जो रेक्टेंगुलर coil है it rotates, and this rectangular coil will rotate between the magnetic poles. Okay, so let's say the coil is rotating in an anti-clockwise direction, which means the direction of force on side AB of the coil is downwards, and the direction of force on the side CD is upwards. मैग्नेटिक फील्ड भी आपके पास अवेलेबल है which travels from north to south, and we just discussed कि if force and magnetic field is perpendicular to each other, as a resultant the current will be induced in the coil. Okay, I'll repeat. अगर आपके पास force और magnetic field, if they are perpendicular to each other, so as a result, current will be induced in the coil. अब basically हो भी यही रहा है ना कि magnetic field lines जो है they are traveling from north to south, और आपके पास ये जो rectangular coil है, this rectangular coil is rotating between the magnetic fields, which means कि जो coil है वो कट कर रहा है magnetic field lines को, ठीक है, और उससे change in magnetic flux, and because of that EMF and current is induced in the coil, ठीक है। So coil rotates and cuts magnetic field lines, ठीक है। सो अगर आप कॉइल को रोटेट करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी सो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड, changing magnetic flux is produced, hence EMF is induced in the coil, hence EMF is induced in the coil. तो ये बेसिक फिनोमेना थ्रू आउट द चैप्टर यही चल रहा है कि जो कॉइल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिटवीन में जब भी मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, because of that the changing magnetic flux will be produced, and hence EMF and current will be induced in the coil. Okay, and how do we determine the direction of the induced current in the coil? We will use Fleming's right hand rule to find direction of induced current in the coil. Direction of induced current in the coil. तो अगर मैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करता हूं तो बेटा इस साइड पे मेरे पास जो करंट है दैट विल बी इनटू द पेज. ओके, सो द करंट विल बी इनटू द पेज, और इस साइड पे जो करंट है दैट इज आउट ऑफ द पेज. करंट इज इनटू द पेज, और इस साइड पे जो करंट है that is out of page. Okay, so this is how the AC generator works. 1 mark आपको कार्बन ब्रशेस पे, 1 mark आपको स्प्लिटेड कम्यूटेटर पे पूछेगा. डायग्राम भी आनी चाहिए, तो आपको 2 mark की डायग्राम जिसमें आपने कोयल, कार्बन ब्रशेस, स्प्लिटेड कम्यूटेटर, आउटपुट सर्किट और मैग्नेटिक पोल्स बहुत क्लियरली ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। अच्छा, आउटपुट सर्किट में आप ये कॉइल्स है, ठीक है, जब इसमें करंट इंड्यूस होगा तो यहां से जो करंट है ये इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा आउटपुट सर्किट से, और आउटपुट सर्किट पे आपने एक मोटर कनेक्ट की हुई है, तो ये जो मोटर है ना इट विल स्टार्ट वर्किंग. ओके,
So this is how it works. Acha. Now, yes. Okay. Now please remember that when the coil is in the horizontal position, तो at that point जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सबसे ज्यादा कट होंगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होने की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा एंड हेंस ईएमएफ एंड करंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस इंड्यूस होगा कॉइल में। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है। अच्छा, सो लेट्स से, let me write this point, coil in horizontal. So when the coil is in horizontal position, maximum EMF and current is induced in the coil. Maximum EMF and current is induced in coil. When the coil is in vertical position, तो वर्टिकल पोजीशन का मतलब जब ये कॉइल रोटेट होके इस तरह हो जाएगा, ठीक है, बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स, तो एट दिस पॉइंट आपके पास जो ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल में वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ईएमएफ, यस, ईएमएफ एंड करंट, देखो बिकॉज क्योंकि जब ये कॉइल रोटेट कर रहा है लेट्स से इन एन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फोर्स की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन, कॉइल आपके पास वर्टिकल पोजीशन में इस तरह है। तो अब आप देख सकते हो कि फोर्स और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों पैरेलल हो जाती हैं। तो जब पैरेलल होगी तो देयर विल बी नो ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ईएमएफ एंड करंट induced in coil becomes zero as force and magnetic field becomes parallel. Okay, okay, अच्छा, सो इसको हम देखते हैं कि लेट्स से अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, प्लीज रिमेंबर कि बेटा जब कॉइल लेट्स से टिल्टेड भी होगा ना, ठीक है, ये जब कॉइल आपके पास थोड़ा सा टिल्टेड होगा तो इस पॉइंट पे भी आपके पास जो क्या कहते हैं ईएमएफ और करंट है वो जीरो नहीं होगी मगर उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, जब आपके पास किसी सर्टेन एंगल पे टिल्टेड होगा कॉइल, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स जस्ट इसकी अब हम ड्रॉ करते हैं। मैं ये डिफरेंट पोजीशंस हैं उसको ड्रॉ करके देन वी विल ड्रॉ द ग्राफ। सो सबसे पहले कॉइल हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ए बी सी और डी, ठीक है। अब आपके पास लेट्स से एंगल अभी जीरो है, ठीक है, मतलब अभी ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। इसके बाद अब जब ये कॉइल को मैं 45 डिग्रीज रोटेट करूंगा, सॉरी 90 डिग्रीज रोटेट करूंगा, तो कॉइल वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको रोटेट किया, रोटेट कॉइल 90 डिग्रीज, ठीक है। तो अब आपके पास रोटेट किस डायरेक्शन में, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा हूं, तो ए बी साइड ये इधर आ जाएगी और सी डी यहाँ पे। अब मैं इसको दोबारा 90 डिग्रीज रोटेट कर रहा हूं, सो ये ए बी साइड आपकी इस तरफ आ जाएगी और सी डी साइड
लेफ्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल कॉइल कितना घूम गया है? सो कॉइल यहाँ पे 180 डिग्रीज घूम चुका हुआ। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ भी साथ साथ हम स्केच करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ओके, सो ये एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ एंगल, ठीक है, डिग्रीज में, और वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये सो दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270 एंड दिस इज 360। अच्छा बेटा, जब कॉइल जीरो पे है तो आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो मैक्सिमम है। जब 90 डिग्री रोटेट हुआ है तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो है। जब 180 हुआ है तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, सीडी इधर आ गया, एबी उधर आ गया, तो आपके पास जो करंट इंड्यूस हुआ है वो भी ऑपोजिट उसमें। अगेन द कॉइल, यस, बिकम्स वर्टिकल, दोबारा वर्टिकल हो गया। ठीक है, जब ये 270 डिग्रीज रोटेट हुआ तो आपके पास जो ए बी है वो इधर आ गया और सी डी इधर आ गया। तो 270 पे दोबारा वर्टिकल है तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो, और लास्ट में द कॉइल अगेन बिकम्स हॉरिजॉन्टल एंड अपनी जगह पे वापस आ गया 360 के बाद। आपके पास दोबारा से induced EMF will be maximum. So the graph is going to be uh, ये एक साइनसॉइडल या कोसाइन ग्राफ फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसको मैं पोजीशंस को मार्क कर देता हूं। ठीक है, लेट मी कॉल दिस एज, ये P Q और S T है। तो ये पोजीशन P पे यहाँ पे है, Q पे यहाँ पे है, R पे यहाँ पे, S पे इधर है और T पॉइंट पे यहाँ पे। ठीक है, Q और S पे कॉइल क्या है? कॉइल इज वर्टिकल। बाकी P R और T पे कॉइल क्या है? P R और T पोजीशंस पे कॉइल जो है वो हॉरिजॉन्टल है। सो दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। अब आपसे वो ये भी पूछेगा एग्जाम में कि स्टेट द फैक्टर्स टू इंक्रीज द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। सो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, यूज स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स, मूव द कॉइल फास्टर, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है, और यूज सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, सो फैक्टर्स to increase magnitude of induced current in coil. So पहला वाला यूज स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स, जितना ज्यादा मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी, उतना ही ज्यादा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा। दूसरा, इंक्रीज number of turns of the coil, number of turns of coil। थर्ड फैक्टर हम कह देते हैं कि आप यूज सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर का क्या मतलब होता है? देखो, आपके पास लेट्स से ये कॉइल है, अगर आप इसको रैप अप कर देते हो एक आयरन के सिलेंडर के साथ, ठीक है, तो आयरन जो है ना, इट्स मैग्नेटिक मटेरियल, तो इट विल एब्सॉर्ब द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर। ठीक है, तो उससे ज्यादा कट होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
तो ज्यादा ईएमएफ और करंट जो है वो आपका इंड्यूस होगा। और लास्ट फैक्टर है कि मूव मैग्नेट फास्टर। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है। अच्छा, अगली चीज वो आपसे इसमें बेटा ये भी पूछेगा कि ग्राफ वगैरह के रिस्पेक्ट से ये पूछ सकता है कि इफ यू डबल द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल तो उससे उसका ग्राफ स्केच करो। ठीक है। सो लेट्स से so I'm going to draw a sinusoidal graph this time. Okay, so we have this, ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ है। ठीक है। वाई एक्सिस पे ईएमएफ विच इज इन वोल्ट। ठीक है। ईएमएफ और टाइम, ये ओरिजिनल ग्राफ है। ओरिजिनल आउटपुट वोल्टेज। अब आप क्या करते हो बेटा, आप इस पे ये कह रहे हो, आपने नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए तो लेट्स से पहले पीक 2 है ना, अब आपकी जो पीक है वो 4 पे चली जाएगी। ठीक है। ओके, सो दिस इज अ ग्राफ फॉर न्यू आउटपुट वोल्टेज। अच्छा, ये न्यू आउटपुट वोल्टेज दो तरह से हो सकती है। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दो या फिर आप मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है तो उसको डबल कर दो। ठीक है। आइदर डबल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट और डबल number of turns on the coil, double number of turns of coil। तो अगर आप कॉइल की टर्न्स को डबल कर दोगे तो उसकी जो पीक वोल्टेज है वो डबल होगी, या अगर आप मैग्नेट की स्ट्रेंथ डबल कर देते हो तो उसकी जो पीक वोल्टेज है वो दोबारा डबल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, व्हाट हैपेंस इफ वी डबल द स्पीड ऑफ द कॉइल। ठीक है, we'll talk about that now. So is the induced current in the coil zero at vertical because there is no change in magnetic flux? Yes. जब वो कॉइल वर्टिकल पोजीशन में होता है ना बेटा, तो आपके पास फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो जाती हैं। तो जब फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाए तो आपके पास there is no cut of magnetic field lines or there will be no change in magnetic flux, and because of that the EMF and the current that is induced in the coil will be zero. Okay, I hope it's clear. Acha, now double the so doubling the speed of the coil. Now let's see if we double the speed of the coil, so what will happen? So double speed। अच्छा, अगर हम स्पीड डबल करते हैं ना तो उससे आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी जो पीक वोल्टेज है वो डबल हो जाएगी। ठीक है। पीक वोल्टेज ऑफ आउटपुट डबल्स। पीक तो डबल होगी होगी, मगर उससे साथ में क्या होगा कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या तो उसको कह लो कि वो डबल होगी या टाइम पीरियड हाफ होगा। टाइम पीरियड is halved or frequency
डबल हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स जस्ट ड्रॉ अ ग्राफ। दिस इज अ ग्राफ। ये आपके पास ग्राफ है। ठीक है, अब दिस इज द ओरिजिनल आउटपुट वोल्टेज। नाउ लेट्स से इफ यू डबल इट, तो इससे क्या होगा, उसकी जो पीक वोल्टेज है वो डबल होगी। ठीक है, पीक वोल्टेज जाएगी 4 पे और -4 पे। अच्छा, टाइम पीरियड हाफ होने का मतलब ये है कि अगर ये आपके पास एक साइकिल का टाइम पीरियड है ना, तो अब हाफ साइकिल में एक पूरा साइकिल प्रोड्यूस होगा। ये बनेगा न्यू आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, सो दिस इज हाउ द न्यू आउटपुट voltage looks like if you double the speed of the coil। तो अगर आप स्पीड डबल करोगे तो उसकी पीक वोल्टेज तो डबल होगी, मगर उसका टाइम पीरियड हाफ होगा। टाइम पीरियड हाफ होने का मतलब ये है कि हाफ साइकिल में एक कंप्लीट साइकिल प्रोड्यूस होगा अब। ठीक है, और लेट्स से अगर ओरिजिनली दो कंप्लीट साइकिल्स हैं, तो दो की बजाय चार साइकिल्स प्रोड्यूस होंगे। सो दिस इज हाउ we have to do this. I hope it's clear to everyone. If anybody has any questions, any confusion, please feel free to ask. अब मैं इसके बाद ट्रांसफॉर्मर करवाऊंगा। ठीक है, ओके, सो वी जस्ट स्टार्ट विद द ट्रांसफॉर्मर नाउ। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, किसी को अगर कुछ नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क। Okay, so let's just start with transformer. Beta, transformer दो होते हैं. One is a step up and the other one is a step down transformer. So we have a step up and a step down transformer. So we have an electromagnet. ठीक है? So this is an electromagnet. Okay, so this is the primary side. ठीक है, ट्रांसफार्मर में हम देते हैं AC सप्लाई। ठीक है, सो दिस इज द प्राइमरी एंड and we are providing it with the AC supply. On the secondary end, so this is the secondary जो है ये आउटपुट है बेसिकली। ओके, सो दिस इज सेकेंडरी। ठीक है, अच्छा, now let me draw the diagram for the step down transformer। जो ट्रांसफॉर्मर, ये दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये भी उसने 1 मार्क का इधर भी पूछा हुआ है कि स्टेट द मटेरियल ऑफ विच इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड। सो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड फ्रॉम आयरन। ओके, सो वी हैव अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द स्टेप डाउन। ठीक है, this is the primary end and this is your secondary side which is only connected to a motor। ठीक है, अच्छा, ना बेटा NS NP VS या VP का क्या मतलब होगा? ठीक है, दिस इज VP
we have Vs here. This is Vp and Vs here. Ns का मतलब है number of turns in secondary coil. Now what is Np? Np का मतलब है number of turns in primary coil. What is Vp? Vp का मतलब है primary voltage. And what is the meaning of Vs? Vs का मतलब होगा secondary voltage. Okay? अच्छा. So we have a step up and we have a step down transformer. Now what is the difference in these two? जो step up transformer है, इसमें जो number of turns होते हैं in the secondary coil, they are greater than the number of turns in the primary coil. जबकि जो step down transformer है, number of turns in the secondary coil is lesser than the number of turns in the primary coil. दूसरा इसमें ये होता है कि voltage in the secondary coil is greater than the voltage in the primary coil और इसमें उसका opposite है. ठीक है? अच्छा, so ये तो हो गया मतलब मेन ना कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी. अभी ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या है? बेसिकली वर्किंग इसकी ये है कि बेटा आप इसको प्राइमरी एंड पे दे रहे हो खुद से वोल्टेज या करंट. यहाँ पे हमने दिया है इसे करंट. अब ये कॉइल में से जाएगा करंट. ठीक है? अब उससे क्या होगा कि ये यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स इंड्यूस होंगे. ठीक है? अब लेट्स से यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ. अब ये जब यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स इंड्यूस होंगे तो क्योंकि आयरन का बना हुआ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दे विल ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स द साउथ पोल थ्रू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट और थ्रू सोलेनॉइड. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये आपकी कट करेंगी सेकेंडरी कॉइल को. व्हेन दे विल कट द सेकेंडरी कॉइल तो उससे चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और उससे ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा. अब जो स्टेप अप है, स्टेप अप में क्योंकि सेकेंडरी टर्न ज्यादा है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होने की वजह से ज्यादा ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा. दिस इज द रीजन कि आपके पास जो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस होगी इट विल बी ग्रेटर देन द वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल. स्टेप डाउन में अच्छा, अब क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है तो ये अगर पहले नॉर्थ साउथ इधर थे तो ये मैग्नेटिक पोल्स जो है वो रिवर्स होंगे. यहाँ पे नॉर्थ भी हो जाएगा और यहाँ पे साउथ. फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोबारा मतलब मूव करेंगे तो आपके पास कॉन्स्टेंटली मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा होगा क्योंकि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रही है वो भी कॉन्स्टेंटली वेरी कर रही है. ओके, सेम स्टेप डाउन में भी ऐसे ही वर्किंग है. But since the number of turns in the secondary is lesser than the number of turns in the primary, तो less magnetic field lines are cut in the secondary coil, जिसकी वजह से less changing magnetic flux and less EMF and current is induced in the secondary coil. तो इसकी 3 मार्क की अगर मुझे एग्जाम में वर्किंग आती है तो मैं क्या बताऊंगा कि AC करंट in AC current in primary coil induces magnetic poles. अच्छा, उससे क्या होगा? induces changing magnetic poles कह देता हूं यहां पर. ठीक है? magnetic field lines travel through electromagnet, travel through
electromagnet, ठीक है, and cuts the secondary coil. So जब magnetic field lines, they will travel through the electromagnet, and when they will cut the secondary coil, hence, so changing magnetic flux is produced. Changing, ये changing का word भी लाजमी होना चाहिए. Changing magnetic flux is produced. और changing magnetic flux produce होने की वजह से hence EMF is induced in secondary coil. ठीक है? So yeah, this is how basically a transformer works. ठीक है? और प्लीज रिमेंबर जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास कॉपर लॉसेस है. ठीक है? लॉसेस तीन तरह के लॉसेस हैं. नंबर वन, कॉपर लॉसेस. कॉपर लॉसेस क्या होते हैं? कॉइल में जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना, उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट इन कॉपर coils. अच्छा, मैं अभी आंसर कर रहा हूं. The question, sir, why there is a zero turning effect when a DC motor coil is at vertical? Why is there a zero turning effect when a DC motor is at vertical, except the fact that perpendicular distance is zero? अच्छा, so you're basically asking कि जब DC मोटर में जब कॉइल आपका अच्छा, ये मैं कंप्लीट कर लूं, फिर एंड पे मैं आई आंसर दैट क्वेश्चन एज वेल. ठीक है? लॉसेस में पहला कॉपर लॉस, दूसरा ईडी करंट लॉस. व्हाट इज एन ईडी करंट लॉस? ईडी करंट लॉस होता है कि आपके पास देखो बेटा, जब ये करंट जो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आयरन से ट्रैवल कर रही होंगी ना, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट इंड्यूस कर देंगी ये आयरन में या इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है? करंट इज इंड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट और आयरन. तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? इसको ओवरकम करने के लिए वी लेमिनेट द आयरन. लेमिनेट आयरन शीट्स. लेमिनेट का मतलब है बहुत सारी आयरन की शीट्स होती हैं which are connected together. तो आप क्या करते हो बेटा? आप इनको लेमिनेट कर दोगे, मतलब इनके दरमियान में एक और कोई शीट कर दोगे ताकि वो लेमिनेट हो जाए. ओके. अच्छा, जो थर्ड है दैट इज फ्लक्स लीकेज. फ्लक्स लीकेज का क्या मतलब है? फ्लक्स लीकेज का मतलब ये है, आपके पास ये कोर है ना, और ये अब जब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल कर रही होती हैं, तो सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे एस्केप आउटवर्ड्स. ठीक है? मतलब वो बाहर हवा में निकल जाती हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द फ्लक्स लीकेज. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस escape into एटमॉस्फेयर. ठीक है? तो जब वो एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और जब ये एस्केप कर रही होंगी, तो उसके लिए हम लोग अगर आपके पास जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आप इसको रैप कर देते हो, ठीक है, विद एन आयरन शीट, ताकि वो आपके पास जो फ्लक्स है वो लीक ना हो. सो बेसिकली transformer, how does it work? You have a primary end of the coil, you have a secondary end of the coil. स्टेप अप हम तब यूज करेंगे अगर हम चाहते हैं कि जो सेकेंडरी में आउटपुट वोल्टेज है वो ज्यादा हो.
So we use a step up transformer. When do we use a step down transformer? अगर हम चाहते हैं कि जो वोल्टेज है इन द सेकेंडरी वो कम हो देन द प्राइमरी कॉइल, और एक फॉर्मूला है जो आपका इस पूरे मैग्नेटिज्म में बार बार यूज होना है, एंड दैट इज वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। इन चारों में से कोई तीन वैल्यूज आपको गिवन होंगी और चौथी आपसे कैलकुलेट करवाएगा। और एक और फॉर्मूला है कि आपके पास वी एस इंटू आई एस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू वीपी इंटू आई पी, विच मीन्स कि आपकी जो आउटपुट पावर है वो आपकी इनपुट पावर के इक्वल होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, सो दिस इज आउटपुट पावर शुड बी इक्वल टू द इनपुट पावर, और पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू आई वी करंट टाइम्स द वोल्टेज। सो आपके पास फॉर्मूला वी एस इंटू आई एस शुड बी इक्वल टू वी पी इंटू आई पी। सो ये दो फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग बस यूज करेंगे इन transformer. If there is any questions anyone would like to ask, please feel free to ask. जी, any